व्यवहार में उदारता। Honorable judges, all the teachers and all of you present here, a very warm greetings to all. Today, I stand here to speak about a man of courage, vision and integrity, Sri Atal Bihari Vajpayee ji. The Bharat Ratna awardee, the Padam Vibhushan awardee, the statesman, the poet, orator and the former Prime Minister and External Affairs Minister of our country. He was not merely a PM but an institution of the political morality. वह केवल नेता नहीं, राष्ट्र का अभिमान थे. Born on 25th of December 1924 in Gwalior, Madhya Pradesh, that is now celebrated as the Good Governance Day. He lived his personal life with the simplicity and devoted himself to the public service. Vakya Shauryam Sil Gambhiryam Rashtra Dharma Nibadhata, this thought perfectly reflects his life. He witnessed the partisan riots and also participated in many of the freedom movements, then joined RSS, journalism and then Bharatiya Janata Sangh, which was later renamed as Bharatiya Janata Party. He once wrote for his own journey, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे विचार चलते हैं. In 1957, he entered first time in Indian Parliament and his oratory skill has amazed everyone, even to the opposition leaders. पंडित नेहरू then said, यह व्यक्ति एक दिन अवश्य ही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा. It was not just a fact but a prediction. When we talk about his achievements, the Golden Quadrilateral Project, the infrastructure that changed India's geography by connecting 4 metropolitan cities of the nation in the 4 directions, Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. At the same time, launching the Gramin Sadak Yojana was the thought that how his governance was inclusive and as he believed in, विकास तभी सार्थक है जब हम सभी को साथ लेकर चले. लॉन्चिंग सर्व शिक्षा अभियान, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द विलेजेस एंड डिजिटलाइजेशन, ही हैज प्रूव्ड भारत की प्रगति गांवों को साथ लिए बिना अधूरी है. For the good governance, he has always said, सुशासन वही है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे. How can we forget his contribution in the Kargil War? In the Kargil War 1999, he managed his firmness with the restraint and he has launched the Operation Vijay by combining military efforts with a diplomatic one and setting a benchmark for the future leaders. He has written a secret letter to the American President Bill Clinton clearly stating that हाँ भारत शांति अवश्य चाहता है किंतु अपनी धरती का 1 इंच भी अतिक्रमण स्वीकार नहीं करेगा. हमें संयम के पुजारी अवश्य हैं, यह हमारी शक्ति है, कमजोरी नहीं. When he has तो कभी कभी वह संवाद से भी निकल सकता है, उसके लिए हमेशा टकराव की आवश्यकता नहीं है. After the Golden Quadrilateral Project, he has in 1998 his project, the Smiling Buddha, the Pokhran nuclear test, has ended the decades of strategic hesitation and always proved it right. राष्ट्रीय सुरक्षा समझौते से नहीं संकल्प से बनती है. In 2001, when the terrorists attacked the parliament, then he has launched Operation Parakram. He has not taken his steps back and even do not abandon his constitutional limits as strength never overpowered restraint. How can we forget that he was sent to UNGA to represent our country and he has speak there in Hindi language. It was extraordinary, but imagine what was more extraordinary. में विरोधी नहीं होते, बस विचारधाराओं में मतभेद होता है. He was a great poet also. The lines that prove it right that he was a great profound thinker. हम कल थे, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे. होने ना होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा. हमारी भारत भूमि पर जन्म लेना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है. भारतीय राजनीति में भाग लेकर इन्होंने साबित कर दिया कि सुशासन कहीं बाहर से नहीं आता है,
अपितु जब इनकी तरह ही एक योग्य, कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति राजनीति में आते हैं तो इनके द्वारा जितने भी राष्ट्रहित में और जनहित में काम किए जाते हैं वो सभी अपने आप में सुशासन का उदाहरण होते हैं। ऐसे महान पुरुष और इनके सिद्धांत मृत्यु के बाद भी कभी नहीं मरते कि धरती माता की गोदी पर जब जब ऐसे सुत आते हैं, अंबर गीत सुनाते हैं, करते हैं कलर और पक्षी भी पर्वत ये गाथा गाते हैं, जो चला गया सब छोड़ गया, दुनिया से नाता तोड़ गया, वो धोखा था इन आँखों का, वो धोखा था इन आँखों का, युग युग से तारे कहते हैं, रणवीर तेजस्वी बेटे राष्ट्र पुरुष कब मरते हैं, राष्ट्र पुरुष कब मरते हैं। अपने कामों से इन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि राजनीति हमें एक विशाल सृजन की शक्ति देती है, जिसका अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो एक सतत, सक्षम, समावेशी और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। और ऐसा तभी होगा जब देश की सरकार जवाबदेही हो, पारदर्शी हो और कर्तव्योन्मुख हो। देश का प्रत्येक राजनेता और प्रत्येक नागरिक ऐसा हो जो राष्ट्र की संस्कृति को सम्मान देता हो, विश्व पटल पर उसका प्रसार करता हो, जैसा कि इन्होंने किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में इन्होंने पहली बार हिंदी भाषा में एक प्रभावशाली भाषण दिया था और हिंदी के गौरव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया था। इनका कहना था कि देश के राजनेता के होते हुए कभी भी देश की सेना हताश और निराश नहीं होनी चाहिए। जब कारगिल युद्ध हुआ था उस समय इन्होंने सिंह के समान गर्जना की भांति अपने देश की सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए कहा था कि मैं युद्ध से कभी नहीं डरता हूँ, मेरी कविता ही युद्ध का आगाह है। अनेक आंतरिक और बाहरी समस्याओं के होते हुए भी इन्होंने परमाणु परीक्षण की स्वीकृति दी और आज इनके प्रयासों से हमारा देश एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। इन्होंने जितने भी काम किए पूरी लगन, निष्ठा और सत्यनिष्ठा के साथ किए। जब दिल्ली से लाहौर बस सेवा का प्रारंभ किया गया था तो ये खुद उस बस में बैठ के वहां गए थे और अपनी आंखों से कार्यों को देखा था। हमारे भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में इनका योगदान सराहनीय रहा है, फिर चाहे वो IT सेक्टर का विकास करना हो या सार्वजनिक शिक्षा हो या फिर सड़कों के माध्यम से गांव को नगरों से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का वो खेलते हैं। जब भ्रम हटाए आँखों का मैंने देखा भारत के हर चप्पे में, हर बच्चे में वो मिलते हैं। जब सावन गाना गाता है, बादल बसंत को लाता है, अंबर से गिरती बूंदों में, तब ऊपर से वो कहते हैं अटल वीर तेजस्वी बेटे राष्ट्र पुरुष कब मरते हैं, राष्ट्र पुरुष कब मरते हैं। धन्यवाद। आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। अटल बिहारी वाजपेयी वो एक ऐसे युग पुरुष थे जिनके विराट व्यक्तित्व को कुछ शब्दों में समेटना किसी व्यक्ति के लिए सरल कार्य नहीं, परंतु फिर भी कुछ एक प्रयास किया है। तो कविता की शुरुआत होती है उनके व्यक्तित्व के परिचय के साथ। भारत की सोई शक्ति ले वह रण, भारत की सोई शक्ति ले वह रणभेरी सा बज बैठा, ललकार मिली जब दुनिया से वह स्वयं को श्रेष्ठ समझ बैठा, वह स्वयं को श्रेष्ठ समझ बैठा। जौहर में जलने वाली जगती की अग्नि से जन्मा था, जौहर में जलने वाली जन्मा था, राष्ट्र प्रेम की अग्नि की तपती लपटों में पनपा था, राष्ट्र प्रेम की अग्नि की तपती लपटों में पनपा था। वो आदि पुरुष जो निर्भयता से विष पीकर भी अमर हुआ, वो आदि पुरुष जो निर्भयता से विष पीकर भी अमर हुआ। वो नेत्र था सूर्य देवता का, अंगार की भांति जलता था, अंगार की भांति जलता था। खुली कलम का जादूगर था, खुली कलम का जादूगर था, नील गगन पर राज किया है, खुली कलम का जादूगर था, नील गगन पर राज किया है। दुश्मन की जंजीरों ने कब बता हिमालय कैद किया है, कदम मिलाकर चलता था वो, कदम मिलाकर चलता था वो, पीढ़ाओं में पलना सीखा, कदम मिलाकर चलता था वो, पीढ़ाओं में पलना सीखा। हास्य रुदन में तूफानों में मोम की भांति ढलना सीखा, मोम की भांति ढलना सीखा। हास्य रुदन में तूफानों में मोम की भांति ढलना सीखा। वो अटल था, वो अटल था जिसने रावण का वध मैं स्वयं करूंगा, रावण का वध मैं स्वयं करूंगा, कहने वाला राम था वो, रावण का वध मैं स्वयं करूंगा, कहने वाला राम था वो। कौरव
शेष ना एक बचेगा, कहने वाला श्याम था वो। रावण का वध मैं स्वयं करूंगा, कहने वाला राम था वो। कौरव शेष ना एक बचेगा, कहने वाला श्याम था वो। हल्दी घाटी का राणा था, मृत्यु को गले लगाता था। हल्दी घाटी का राणा था, मृत्यु को गले लगाता था। कंकड़ को जो शंकर कह दे, ऐसा विस्मय भगवान था वो, ऐसा विस्मय भगवान था वो। राम बचाया भीतर का, जब राजनीति में झुका नहीं। राम बचाया भीतर का, जब राजनीति में झुका नहीं। बचा लिया था छत्रपति, जब किसी के आगे झुका नहीं। बचा लिया था छत्रपति, जब किसी के आगे झुका नहीं। सत्य को अवगुण कहते हैं इस राजनीति के मंत्र में। सत्य को अवगुण कहते हैं इस राजनीति के मंत्र में। वो हरिश्चंद्र सा सिमट पर झूठ के आगे झुका नहीं। आगाज किया परिवर्तन का, आगाज किया परिवर्तन का, वो इतिहासों में सज बैठा। ललकार मिली जब दुनिया से, वह स्वयं को श्रेष्ठ समझ बैठा। वह स्वयं को श्रेष्ठ समझ बैठा। उसकी करनी कथनी में अंतर न कदापि चलता था। उसकी करनी कथनी में अंतर न कदापि चलता था। भाषण के तीखे शब्दों से वो सिंहासन से लड़ता था। भाषण के तीखे शब्दों से वो सिंहासन से लड़ता था। वो अटल था जिसने प्रेम चुना, जब देख लिया बर्बादी को। वो अटल था जिसने प्रेम चुना, जब देख लिया बर्बादी को। बर्बर बंजर बनकर बैठी, था शुद्ध किया उस माटी को। मंदिर मस्जिद गिरजाघर में मिलता ना उसे भगवान कभी। मंदिर मस्जिद गिरजाघर में मिला ना उसे भगवान कभी। तन मन हिंदू, रग रग हिंदू, इस शब्द का था अभिमान उसे। इस शब्द का था अभिमान उसे। जी भर वो जिया, वो मन से मरा। जी भर वो जिया, वो मन से मरा। वो इतिहासों में सज बैठा। ललकार मिली जब दुनिया से, वह स्वयं को श्रेष्ठ समझ बैठा। वह स्वयं को श्रेष्ठ समझ बैठा। धन्यवाद। अतिथिगण, सम्मानित निर्णायकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, सादर प्रणाम। मैं आज आपके समक्ष एक ऐसी स्वरचित काव्य प्रस्तुति लेकर उपस्थित हूँ जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन, उनकी कविताओं की संवेदना और उनके विचारों से प्रेरित है। मेरा काव्य पाठ समर्पित है उस व्यक्ति को जिसने राजनीति में भी कविता को जीवित रखा। वह शब्द नहीं थे केवल, वह शब्द नहीं थे केवल, वह संवेदना थे। वह सत्ता नहीं थे केवल, वह साधना थे। वह सत्य नहीं थे केवल, वह साधना थे। राजनीति की कठोर धरती पर, राजनीति की कठोर धरती पर जिसने कविता बोई, वह अटल बिहारी वाजपेयी, जिसने मर्यादा कभी न तोड़ी और मानवता जोड़ी। जिसने मर्यादा कभी न तोड़ी, मानवता जोड़ी। ग्वालियर की गलियों से निकला, ग्वालियर की गलियों से निकला एक साधारण बालक, जो आगे चलकर बन गया राष्ट्र का नैतिक चालक। जो आगे चलकर बन गया राष्ट्र का नैतिक चालक। न झुकी सत्ता के लोभ में, न झुकी सत्ता के लोभ में, न बिके विचारों के दाम। राजनीति में रहकर भी रखा कविता सा ईमान। राजनीति में रहकर भी रखा कविता सा ईमान। उन्होंने कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। यह पंक्तियां केवल कविता नहीं, उनका जीवन दर्शन थी। हर पराजय के बाद भी उठ खड़े होने की शर्त थी। हर पराजय के बाद भी उठ खड़े होने की शर्त थी। जब संसद में शब्द बोले, जब संसद में शब्द बोले तो सो नहीं संस्कार बोले। जब संसद में शब्द बोले तो सो नहीं संस्कार बोले। जब विरोध किया उन्होंने तो भी मर्यादा के द्वार खोले। जब विरोध किया उन्होंने तो भी मर्यादा के द्वार खोले। विपक्ष भी नतमस्तक था, विपक्ष भी नतमस्तक था। ऐसा व्यक्तित्व कहाँ मिला? राजनीति में भी अजातशत्रु सा सम्मान मिला। राजनीति में भी अजातशत्रु सा सम्मान मिला। कभी हृदय था उनका, कभी हृदय था उनका, इसलिए शासन में करना थी। निर्णयों में कठोरता नहीं, विचारों में संवेदना थी। निर्णयों में कठोरता नहीं, विचारों में संवेदना थी। उन्होंने कहा, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी हवाओं में आज अंधेरे ने रास्ता रोक लिया है। यह कविता नहीं, एक राष्ट्र को आशा देने का संकल्प था। अंधकार में भी प्रकाश खोज लेने का विकल्प था। यह कविता नहीं, एक राष्ट्र को आशा देने का संकल्प था। अंधकार में भी प्रकाश खोज लेने का विकल्प था। पोखर की रेत हो या, पोखर की रेत हो या शांति की बस यात्रा, हर कदम में झलका राष्ट्रहित का ही नक्षत्र। न
दिखाई और संवाद भी साथ लिया, शक्ति भी दिखाई और संवाद भी साथ लिया। उनकी कविता में राष्ट्र था और राष्ट्र में कवि था, शब्दों में संयम था और सत्ता में सुचिता, शब्दों में संयम था और सत्ता में सुचिता। उन्होंने सिखाया नेतृत्व ऊंचाई नहीं उत्तरदायित्व होता है। उन्होंने सिखाया हमें नेतृत्व ऊंचाई नहीं उत्तरदायित्व होता है और शासन का अर्थ सेवा में परिवर्तित होता है, और शासन का अर्थ सेवा में परिवर्तित होता है। आज जब शब्द खोखले हैं, आज जब शब्द खोखले हैं और सत्ता भारी लगती है, तब हमें अटल जी की कविता फिर से रास्ता दिखलाती है, तब हमें अटल जी की कविता फिर से रास्ता दिखलाती है। वह गए नहीं है वास्तव में, वह गए नहीं है वास्तव में, वह विचार बनकर जीवित है हर उस युवा के भीतर जो सत्य के पथ पर स्थित है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अटल जी आप शब्द नहीं संस्कार थे, अटल जी आप शब्द नहीं संस्कार थे, आप सत्ता नहीं सर्जन थे, आप राजनीति में कविता और कविता में राष्ट्र थे। आप राजनीति में कविता और कविता में राष्ट्र थे। धन्यवाद। जय हिंद।